Good morning, guys. Today I'm going to start the ninth unit. The name of the ninth unit is Business Finance. I'll start with the first chapter. It is Financial Management. You know the meaning of management. कि in management we have to do different kinds of activity, and with the help of men means the human resource, you will perform all the activities. Now here the financial management means how you have to manage the finance of your business. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड. नाउ हाउ यू विल गेट फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, and after getting the different sources, how you will utilize that finance. So it's not only that you will generate finance, but the proper and effective utilization of this finance is also important. So in this financial management we have to take so many kinds of decisions related to the financial management, या proper arrangement of finance and its effective utilization. So this is about the financial management. Look at the definition. Financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds for effective operation. As I said, it is not only that you have to arrange the finance, but its proper utilization is also the important part of the financial management. Now, the role of financial management. You know, in our business we are preparing the two things. One is the profit and loss, and the second one is the balance sheet. In the profit and loss you will record all the incomes and expenses, and then you will get the profit, and that amount of profit will be transferred to the balance sheet. So with the help of financial management you will be able to generate the amount of income or expenses, or you will get the amount of expenses or incomes with the help of this arrangement. How it is mentioned ki how the finance is important and how the finance is playing an important role in the business. First is determination of fixed assets. It is important for a businessman to firstly decide how much he has to contribute in the purchase of fixed assets. So first decision is here that he has to determine the total amount of fixed assets he needs for his business. For example, I am going to establish a business. For that I need 500 crore rupees for the establishment of fixed assets only. So in this you have to determine firstly the amount of fixed assets you require. Second is determination of current assets. After that you will get the amount of current assets also. The current assets are the such kind of money which you required for the day-to-day operational activities of your business. So for managing your current assets, how much finance a businessman required, how much he needs cash, how much he will get in the bank, how much is the amount of stock he has to keep with him. So he has to estimate the amount of total current assets. Suppose the estimation is 100 crore. So you have to estimate in terms of finance the amount of current assets. Determination of proportion of long and short term finance. Now यू अरेंज कि आपने कितना फंड्स फिक्स्ड एसेट के लिए और करंट एसेट्स के लिए रिक्वायर था वो आपने फाइंड आउट कर लिया. देन यू हैव टू अरेंज the sources of finance from the long as well as from the short sources. long sources हमने 11th क्लास में पढ़ा कि लॉन्ग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं. आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, आप डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं. एंड द शॉर्ट सोर्सेज आर which you have to pay within a short time duration, within 1 year. they are the short term financial sources. तो यहाँ पर आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको कितना लॉन्ग सोर्सेज का प्रपोर्शन लेना है और कितना शॉर्ट सोर्सेज का. डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना प्रपोर्शन लॉन्ग से और कितना शॉर्ट से लेना है. फॉर एग्जांपल द प्रपोर्शन इज 70:30. तो अब 70 जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से मुझे लेना है उसमें मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, कितने के डिबेंचर्स लेने हैं, कितना बैंक से लोन लेना है, कितनी मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स करनी है. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कंसीडर इन दिस पॉइंट. डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. The various items of profit and loss means the necessary expenses which you have to make on the payment of debt, depreciation related to the long term asset, discount you have to pay. Such kind of things you have to determine as per the profit and loss account in this point. The next point is objects of objects of financial management. The main object of business financial management is wealth maximization. Wealth maximization means increasing the capital invested by the businessman, which is done by these three ways. मतलब जो पैसा एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है उस पैसे को कैसे इंक्रीज किया जाए, दिस इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपनी अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है एक शेयर होल्डर, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए जो भी वेज यूज़ करती है, दे आर द पॉइंट्स अंडर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन.
आप किसी भी कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? जब उसकी शेयर प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी, देन वी विल से कि द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट कंपनी इज गुड. सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी फाइंड आउट विद द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक कंपनी ने सपोज 100 शेयर्स इशू किए थे, 100 ईच का, तो उसकी वेल्थ थी 10,000. उसकी अब मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई है शेयर की 120, तो 100 इंटू 120 करके 12,000 उसकी अब वेल्थ हो गई. इट मीन्स उसकी वेल्थ कितने से इंक्रीज हुई? 2,000 रुपीज़ से. एंड अगर इसकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी तो वेल्थ उसकी डिक्रीज हो जाएगी. सो अंडर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अ कंपनी मेन मोटो इज टू इंक्रीज द वेल्थ या capital invested by the shareholder by doing these three kinds of decision. With the help of these three decision, we will increase the wealth of the company. They are optimum investment decision, financing decision and dividend decisions. ये decision अभी हम पूरा proper detail में discuss करेंगे. So we will discuss firstly the financial decision. We have to take three important decision. First is related to investment, second finance, third is dividend. How? The first is investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक बिजनेसमैन को किस एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसका बेस्ट डिसीजन लेना है. ही हैज़ टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग, जिस इन्वेस्टमेंट से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले. दिस इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन अ पर्टिकुलर एसेट so that he will get the maximum return. This is called the investment decision. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में he has to invest his amount in the long term assets of a business, like he has to purchase the machinery, he has to invest his amount in outside investment. तो यहाँ पर वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेगा सो दैट उसकी कॉस्ट कम से कम लगे और उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे आर ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन. इसमें वो अपना करंट एसेट्स में कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा दैट ही हैज़ टू डिसाइड. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड होती है, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं. और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी लिक्विडिटी से रिलेटेड होती है. लिक्विडिटी इज़ हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश. जो करंट एसेट्स होती हैं बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा लिक्विड होती हैं. Next, we have to consider different factors before deciding our investment decision. The first is जब आप long term investment decision ले रहे हैं, इनको capital budgeting decisions भी बोला जाता है. इसके लिए आपको consider करना है firstly cash flow of the project. कि जिस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है. कि आप पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, उससे आपको रिटर्न कितने टाइम पीरियड के मिलने के बाद स्टार्ट होगा. यू हैव टू कंसीडर दिस वेरी केयरफुली एनालाइज कि अगर मैं अपना पैसा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 3 to 5 ईयर्स के बाद रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा, ये आपको कंसीडर करना है. द रेट ऑफ रिटर्न. बट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपको रिटर्न कितना मिलेगा. 8%, 10%, मतलब रिटर्न एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो कवर हो, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी हो. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट करने से पहले the rate of return, the inflow situation, the market situation, you have to consider these points also before taking an investment decision. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जितना नेसेसरी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उतना एडिक्वेट आपके पास फंड होना चाहिए सो दैट अपने बेसिक एक्सपेंसेस आप लोग कवर अप कर सकें. सेकेंडली उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिक्विडिटी को भी कंसीडर करना है, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है. लिक्विडिटी ऐसा ही टोल्ड यू कि कितनी जल्दी आप किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं मनी की रिक्वायरमेंट के टाइम पर. सो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू मे कन्वर्ट योर एसेट्स हाउ क्विकली इन कैश. दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी. सो वी हैव टू कंसीडर द लिक्विडिटी पॉइंट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. The next point is financing decision. This is the second decision. Financing decision में we have to determine how the total funds required by the business will be obtained from various long term sources. कि जो आपको फाइनेंस अब अरेंज करना है
उस फाइनेंस को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कैसे कैसे और कितना कितना कलेक्ट करना है, यू हैव टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इन फाइनेंसिंग डिसीजन। मीन्स हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लेने के लिए ऑप्शंस में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स और बैंक लोन। अब किससे कितना कितना लेना है, इनसे कितना हमें इन्वेस्टमेंट पहले कॉस्ट लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब कंसीडर करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि किस सोर्स से कितना पैसा कलेक्ट किया जाए। दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन। अब डेब्ट से पैसा लेना है या शेयर से पैसा लेना है, इसके लिए आपको उसकी कॉस्ट और उससे मिलने वाले रिटर्न को कंसीडर करना होगा। वी हैव सो मैनी फैक्टर्स रिगार्डिंग द डिबेंचर्स एंड द शेयर कैपिटल। हमने 11th में डिबेंचर्स और शेयर्स को जब डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि शेयर इज़ अ रिस्की कैपिटल, द डिबेंचर इज़ द चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू द शेयर कैपिटल। तो अगर आपको चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, और अगर आप पैसा ज़्यादा दे सकते हैं बिकॉज द इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट द मैक्सिमम रिटर्न एज प्रॉफिट, सो देन यू कैन इशू द शेयर्स। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे शेयर्स में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कैपिटल को हमें रीपे नहीं करना पड़ता लाइफ टाइम पीरियड तक, बट डिबेंचर के पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। सो मैनी काइंड्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो आपके इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। So before this, you will discuss that factors affecting financing decision. The first is cost. As I said, the debentures are cheap as compared to the share capital. So if you want to consider a cheap source of finance, then you will issue debentures as well, other than shares. Risk. डिबेंचर इज़ मोर रिस्की। एज आई सेड कि डिबेंचर्स के पैसे की आपको एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट करनी होती है, बट शेयर्स के पैसे का रीपेमेंट का कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज कि शेयर्स को इशू करने में या डिबेंचर्स को इशू करने में हमें बहुत सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक्सपेंस नहीं करना चाहते तो आप रिटेन्ड अर्निंग मीन्स अपने ही प्रॉफिट्स को रिटेन करने वाला सोर्स यूज़ कर सकते हो। कैश फ्लो पोजीशन। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ बिजनेस, कि उसको कितनी जल्दी कैश अरेंज हो जाता है। अगर आपको पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए आपको डेफिनेटली आपको पता है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, उनको हर साल हमें पे करना ही करना है। तो अगर आप चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस डेब्ट यूज़ कर रहे हो तो आपकी कैश की फ्लो की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए सो दैट आप उनका इंटरेस्ट पे कर सको। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कि आपका बिजनेस चले या ना चले आपको बॉर्न करनी है, या आपने इको में भी पढ़ा होगा, लाइक हमारी प्रोडक्शन हो या ना हो हमें रेंट भी पे करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है। दे आर द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो आपने बैंक से लोन्स लिए हुए हैं या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, आपको प्रॉफिट हो या लॉसेस हो ये आपको देने ही पड़ेंगे। तो अगर हमारी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो डिबेंचर्स को हम कम लेंगे, और अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो डिबेंचर्स हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट में ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते तो उस सिचुएशन में यू विल इशू डिबेंचर्स, बिकॉज जो इक्विटी शेयर्स परचेज करेंगे दे विल गेट द पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, तो कंट्रोल में बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में आपकी सिचुएशन क्या है, मीन्स कंपनी के प्रॉफिट्स शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज है डिक्रीज है, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर फाइनेंसिंग डिसीजन. So I think this is enough for today's video. The next topic I will discuss in the next video, and I will complete the chapter in the next video. Thank you so much.